Okay, first listen, my dear students. This is extra class, and in this class we try to speak in English, and we learn how to speak in English because at this time you know very well English speaking is increasing day by day, and everybody wants to speak in English, but most of the people of India are unable to speak in English. And I have seen in my society most of the teachers teach, most of the teachers have been teaching for 10 years, 15 years, but they are unable to speak in English. Why? Because they know everything, but they have lack of practice. Okay, and most of the students also know about tense, parts of speech. Okay, but they don't speak English. Why? Because they don't practice. Did you understand? And it is said, practice makes a man perfect. Did you understand? So first of all, try to know how to introduce yourself. Okay. First of all, try to know. My name is Vimlesh Singh Yadav. If I identify myself, my name is Vimlesh Singh Yadav from Mohandabad, Gazipur, Uttar Pradesh. Okay, and I have qualified graduation, MA plus BA degree from Satyadev Degree College. Okay, and I'm a teacher, and I want to be a best teacher in my life. Okay, and at this time you are in class 6, 7th, and 8th. So, how can you introduce yourself? First of all, tell your name. My name is Bimlesh Singh Yadav. Suppose that I am a student of class 6. Okay, my name is Bimlesh Singh Yadav, and I study in 6th standard. My father's name is Mr. Rajendra Singh Yadav. He is a farmer. My mother's name is Mrs. Ramsiya Devi. She is a homemaker. Okay, and I study in BBD Public School. This school is situated Sahapur Usri, Gazipur. Okay, and I want to be a whatever you want to be, teacher, doctor, engineer. Okay, and all of you should know 10 lines about yourself. Did you understand? After that, try to tell your daily routine. Routine means I get up at 5 o'clock. After that, I get fresh. After that, I study 2 hours. After that, I take my brush, and after that, I take bath. After that, I take breakfast. After that, I put on my uniform, and after that I go to school. I study from 9 o'clock to 3 o'clock in BBD Public School. After that I come from school. I come back from school. मैं स्कूल से वापस आता हूँ. After that I take something to eat.
After that, I go to play cricket, football, hockey. Okay, and some students go to tuition. After that, come at 5 o'clock, and I sit to study at 5 o'clock, and I study till 8 o'clock. After that, I take dinner, and after that, go to bed. Did you understand? You know very well, but it is difficult to speak in front of teachers and your classmates. आपके अपने ही क्लासमेट्स के सामने, टीचर्स के सामने बोलने में हेजिटेशन. यू विल फाइंड हेजिटेशन टू स्पीक इन इंग्लिश. नॉट ओनली स्पीक इन इंग्लिश, द पर्सन हु स्पीक्स भोजपुरी and say speak in Hindi, he finds it difficult to speak in Hindi. Did you understand? Means जो व्यक्ति भोजपुरी सिर्फ बोलता है उसको आप हिंदी बोलने कहोगे तो उसको भी हेजिटेशन होगा. बात समझ में आ रही है? और जो हिंदी बोलता है उसको इंग्लिश बोलने के लिए कहेंगे तो भी उसको क्या होगा? हेजिटेशन होगा ना. और मैं तो ये कहता हूं कि इफ यू वांट टू डू एनी वर्क फर्स्ट टाइम, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू दैट वर्क. दुनिया में जो भी काम आप पहली बार करना चाहेंगे या करने की कोशिश करेंगे तो आपको दिक्कतें होंगी, लेकिन बार बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसके हम क्या हो जाते हैं? हैबिचुअल हो जाते हैं. जैसे आप पहले दिन याद कीजिए, रिमेंबर योर फर्स्ट डे व्हेन यू डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन एनी टॉपिक. व्हाट डिड यू फील दैट डे? आप उस दिन को याद कीजिए जब पहले दिन आप स्पीच किसी टॉपिक पे दिए थे तो आप कैसा फील किए थे? आप देखे होंगे आपका पैर थोड़ा सा झंझना रहा है, ये जो हार्ट बीट है ये थोड़ा सा बढ़ गया है. बहुत से लोगों के क्या बोलना है, यहाँ आते हैं माइक पकड़ते हैं भूल जाते हैं, ब्लैंक माइंड हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं. तो वो सबके साथ होता है. और जिस काम में जो व्यक्ति आज आपको एक्सपर्ट दिख रहा है उस व्यक्ति ने उस काम में अपना समय दिया है और अभ्यास किया है, तब जाकर के आज वो वैसा है ना. तो आपको क्या करने की जरूरत है? प्रैक्टिस करने की जरूरत है. और हम लोग वी लिव इन रूरल एरिया, एंड इन रूरल एरिया मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक भोजपुरी. Did you understand? So how will you speak in English in your village? Is it possible? No. गांव में मैक्सिमम लोग, क्या तुम कह लो, सब लोग भोजपुरी बोलते हैं. वहां आप इंग्लिश नहीं बोल सकते. लेकिन आप बताओ, क्या आपको लगता है कि आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे, भोजपुरी बोलेंगे तो आपका काम चल जाएगा? बोलिए. जब आप जैसे ही आउट ऑफ स्टेट जाएंगे तो विभिन्न प्रकार की भाषाओं से मुलाकात होगी. जैसे आप महाराष्ट्र में चले जाएं, मराठी नहीं समझ में आएगा. गुजरात में चले जाएं, गुजराती नहीं समझ में आएगा. तमिलनाडु में चले जाएं, तमिल नहीं समझ में आएगा. तो वहाँ पे आपका काम कैसे चलेगा? और उन लोगों को हिंदी नहीं समझ में आएगा. बोलो. तो तुम देखोगे कि साउथर्न इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक इन इंग्लिश. बात समझ में आ गया? और इंग्लिश, मैं नहीं चाहता आपको कि आप अंग्रेज बन जाएं. मैं बस इतना चाहता हूं कि इंग्लिश में कोई किताब हो तो आप पढ़ के समझ जाएं कि क्या मतलब होता है. और दूसरी चीज, जब आप कहीं किसी से बात करें तो आप बोलेंगे सर आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी
भोजपुरी, हिंदी एंड इंग्लिश। योर चॉइस, विच लैंग्वेज यू नो। बात समझ में आ गया? तो आप यू नो वेरी वेल भोजपुरी, हिंदी, ओके। और आपको दिक्कत कहाँ है? इंग्लिश में है। तो इंग्लिश में मैं बार बार बोलता हूँ कि सिर्फ टेंस आप पढ़ लेंगे तो भी आपको इंग्लिश नहीं आएगा। हर चीज, हर भाषा का अपना टून होता है। उस टोन को अगर आप पकड़ लें तो आप सीख जाएंगे। अच्छा, भोजपुरी किसी ने सिखाया हम लोगों को, लेकिन भोजपुरी में सुबह से लेकर शाम तक बोलेंगे, कहीं सेंटेंस में गड़बड़ी आएगा? नहीं आएगा। हिंदी में आता है? नहीं आता है। इंग्लिश में कुछ मिनट के बाद सारे शब्द क्या हो जाता है? खत्म। तो किसी भी भाषा को अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसका सबसे पहले जो वर्ड मीनिंग है वो जानना बहुत जरूरी होता है। अगर वो आपका स्ट्रांग है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कल मैंने आप लोगों को कुछ वर्ड मीनिंग दिया था, एकदम आसान आसान, इसके बावजूद भी बहुत से लोगों ने गलती किया। तो अभी आप 6, 7, 8 में हैं, तो सबसे पहला काम क्या कीजिए कि जितने भी वर्ब हैं और पूरे वर्ब को आप काउंट कर देंगे ना तो 300 प्लस होता है, 310, 20। तो 310, 20 आप याद कर लीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिस तो कीजिए आप। प्रैक्टिस का मतलब डेली हम लोग 2-4 बच्चे आए और यहाँ खड़े होकर के अपना इंट्रोडक्शन दें, अपना डेली रूटीन बताएं, और बाकी टेंस हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो टेंस के पढ़ने के सिलसिले में चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। हालांकि पास्ट कंटिन्यूअस तो सबको समझ में आ गया होगा, इसके बावजूद भी मैं बता देता हूं। चाक लाओ बगल से, ठीक है। क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? चलिए बताओ बेटा, तुम खड़े हो जाओ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? When the end of sentence comes, रहा था, रही थी, रहे थे, etc. That is called past continuous tense. मतलब कि इस टेंस में हमको उस समय का बोध होता है जो भूतकाल में या पीछे हो रहा था, ठीक है ना। जैसे कल हम लोग मूवी देख रहे थे, है ना सर। कल वो बाजार जा रहा था, मेरी मम्मी बाजार से आ रही थी, मेरी दीदी खाना बना रही थी। इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। तो इसका क्या हो गया कि when their end of sentence comes, रहा था, रहे थे, रही थी, ओके, etc. that is called past continuous tense। और जैसे हम लोग पढ़े उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसका यूज करते हैं? इज, एम, आर का। तो सेम प्रोसेस रहेगा, मतलब कि जब था थे थी आ जाएगा रहा रही के बाद, तो हमारा क्या यूज होगा? वाज और वर। तो वाज कहाँ यूज होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे आई, ही, सी, इट या किसी का नाम आ जाए। और वर कहाँ यूज होता है? तो प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे यू, दे, वी, नेम एंड नेम, ठीक है। ऐसे आते हैं तो क्या होगा? वर होगा। तो देखो, जब अफर्मेटिव होगा तो क्या लिखोगे बताओ? पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट
वाज वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत? निगेटिव होगा तो बताओ। सब्जेक्ट वाज और वर और प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यही इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा? वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। Did you understand? Do you want to write? No. देखिए, मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं। I have told you many times. We don't try to write, try to learn. Okay? कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो ना तो कोशिश करो कि उसी समय सीख जाओ, और नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आप हर चीज को पढ़ते हैं, सोचते हैं कि बाद में याद कर लूंगा, तो कितना चीज आप याद कर लोगे बाद में? संभव है? अभी दिमाग लगा लो कि जब ऐसे सेंटेंस आएगा कि वह जा रहा था, वह खाना खा रहा था, मेरी मम्मी खाना बना रही थी, वह सो रहा था, ठीक है, वह आ रहा था, मेरी मम्मी पूजा कर रही थी। इस तरीके के जब सेंटेंस आएगा तो पहले हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट। जैसे वह स्कूल जा रहा था, जा रहा था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ही, and according to subject he we write was after that सब verb जाना तो go प्लस ing तो क्या हो जाएगा? he was going। कहाँ? स्कूल, तो क्या हो जाएगा? स्कूल। बात समझ में आ रहा है? अब वह स्कूल नहीं जा रहा था तो क्या हो जाएगा? He was not going to। कोई दिक्कत? इसी को हम क्वेश्चन वर्ड में पूछ दें कि क्या वह स्कूल जा रहा था तो क्या हो जाएगा? Was he going to स्कूल। डिड यू अंडरस्टैंड? तो मैं पूछूं, तुम लोग बताओगे? वह बाजार जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू। मैं कल शाम को पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग इन द इवनिंग स्टडी। मेरी मम्मी खाना बना रही थी, माई मॉम वाज कुकिंग फूड स्टडी। ठीक है, मैं कल अंग्रेजी सीख रहा था, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, मैं कल अंग्रेजी सीख रहा था। ओके, चलो उसके बाद बताओ, तुम अपना काम कर रहे थे, यू वर डूइंग योर। वह स्कूल जा रहा था, वर्षा हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। मदन रो रहा था, रवि और गोपी हंस रहे थे, मैं नहीं हंस रहा था,
कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, वह नहीं झगड़ रही थी, शी वॉज नॉट क्वेरलिंग, हम लोग नहीं खेल रहे थे, नीता गाना नहीं गा रही थी, नीता वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वर्षा नहीं हो रही थी, क्या मैं हंस रहा था, क्या वह रो रही थी, क्या लड़के खेल रहे थे, क्या वह बाजार जा रही थी, क्या आप नहीं सो रहे थे, क्या हम लोग काम नहीं कर रहे थे, वर वी नॉट वर्किंग। ठीक है, देखिए घर पे जब तक आप बोल बोल करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जानेंगे तो सब कुछ, लेकिन बोल नहीं पाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा, मान लो यहाँ तुम कहते हो कि हमको इंग्लिश नहीं आती है तो नहीं बोल पाते हैं। क्या जो लोग हिंदी जानते हैं वो जो जानते हैं वही दूसरे जगह पे जा करके बोल लेते हैं? कहीं 1000-2000 की भीड़ इकट्ठा हुई है और आप भोजपुरी अच्छे से बोल लेते हो, तो क्या वहां भोजपुरी में ही जा करके भाषण दे दोगे? हिंदी में आप अच्छे से जानते हो, लेकिन क्या हिंदी में वहां भाषण दे दोगे? फाइनली लास्ट में आएगा हेजिटेशन ना। तो बेटा जी, हेजिटेशन को आप लोग क्या कीजिए, दूर कीजिए। खत्म नहीं होता है, दूर होता है। ठीक है, समय हो गया तो क्या कहोगे? टाइम इज, समय हो गया तो टाइम इज अप। माने किस चीज का समय हो गया? पढ़ने का समय हो गया, लिखने का समय हो गया। और जब टाइम खत्म हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? टाइम इज अप का मतलब समय हो गया, पढ़ने का, लिखने का, गाने का। ठीक है, और क्या चल रहा है, किसी से पूछना है कि क्या चल रहा है आजकल, तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज गोइंग ऑन। व्हाट इज गोइंग ऑन, आजकल क्या, व्हाट इज गोइंग ऑन का मतलब हो गया कि आजकल क्या चल रहा है। तो वो बताएगा आजकल पढ़ रहे हैं, बाबर को पढ़ रहे हैं, उसी में हुमायूं आ जा रहा है। हुमायूं का और बाबर का चेहरा एक जैसा नहीं रहने तो क्या दिक्कत है, एक जैसा दिख रहा है। देखो सबसे बड़ी बात है, इधर देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है एजुकेशन में? मजे लेके पढ़ो। मजे लेके पढ़ने के फायदे हैं, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बेशर्ते कि डिसिप्लिन में रहो। देखो, व्हाट वर यू डूइंग, क्या इसी में घुस गए थे? ठीक है, हंसते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं, हंसना चाहिए। कल हम लोग मूवी देखे थे ना, देखे? उस बच्चे को सिंगर बनने के लिए कितना दर दर की ठोकर खाना पड़ा था ना। तो आज हम लोग देखेंगे आरक्षण। मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं रिजर्वेशन, लेकिन आपको समझ में नहीं आया है। और वाकई में आरक्षण मूवी हम अध्यापकों को देखना चाहिए और बच्चों को भी देखना चाहिए। बहुत शानदार है, नहीं? और सबसे मजे की बात है कि इसमें का कोई भी ऐसा सीन नहीं है जिसको हमको भगाना पड़े, सारे सीन अच्छे हैं, है ना? तो एंजॉय कीजिए आप लोग, मेन सीखिए।